Okay, Ji. Today we will discuss about input and output devices. It is chapter number 5 and it is the last chapter of your first term. Okay. So you know how what are the input and output devices? Input and output devices are used to enter the data into the computer. Okay. The simplest definition of the computer is an electronic device which take data as an input, process it and give a result on a output devices. So input devices are used to enter the data into the computer, okay, and output devices are used to show result or outcomes, okay, on a output device, right? So some common output devices are the most common input devices are mouse and keyboard, okay, and other than the scanner, okay, which is used to scan the document, barcode reader, QR code reader, okay, you know about this. Digital camera, it's an input device, keyboard, pointing device, okay, all these are the input devices which provide the data to the computer. Okay, let's see them one by one, okay. First of all, we will discuss the scanner, right? Okay. The scanner is an input device which scan the document, okay, which provide us a soft copy of a hard document. Okay, if you want a hard document become a soft image, okay, we want a soft image of a hard copy, then we need a scanner, right? Just like this book, ठीक है, this book, अब देखें ये बुक आपके पास, यू हैव अ हार्ड कॉपी, ठीक है, आपके पास जो पेपर है या जो बुक है, दिस इज हार्ड कॉपी, बट इज नाउ इट इज इन सॉफ्ट कॉपी. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द स्कैनिंग टेक्निक, ठीक है, स्कैनिंग टेक्निक की वजह से हमने इसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर दिया. तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द स्कैनर, ठीक है, function scanner ke through. So there are two types of the scanner. One is the 2-dimensional scanner and other is the 3-dimensional scanner. You know that about the dimensions, okay? There are 2 dimensions x and y, and for 3 dimension x, y and z. तो जब कोई चीज आप horizontally and vertically आप देख रहे होते हो, just तो it's mean कि it is 2-dimensional, ठीक है. Let's say कि अगर आप अपनी बुक का कोई फ्रंट पेज देख रहे हो, just front page, then it's mean it is in 2-dimensional, okay. एंड देन अगर आप उसको रोटेट करते हो और आप उसकी सारी साइड्स को देख सकते हो, देन इट इज 3-dimensional, ठीक है, देन इट्स बिकम अ 3-dimensional, ओके. जैसे आप अगर किसी चीज को बिल्कुल फ्रंट से देख रहे हो, ठीक है, देन आप इसको x एंड y हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली देख पा रहे हो, दिस इज 2-dimensional. लेकिन अगर आप उसको ऊपर से वॉच कर रहे हो, हाइट से वॉच कर रहे हो, उसका बैक फ्रंट लेफ्ट एंड राइट आप अगर उसको देख पा रहे हो, देन इट्स मीन इट इज 3-dimensional, ओके. So normally 2-dimensional printer scanners are commonly used in offices, okay, colleges or over daily routine. So what is the function of the scanner? The function of the scanner is the same, to convert the hard copy into soft copy. These type of scanner are the most common form of and generally used to input hard copy, okay, normally a paper. This image is converted into an electronic form which can be stored in the computer, okay. देखिए computer can only understand the machine language or a binary language, 0 and 1s की language को understand करता है. That is why हमें क्या करना होता है कि हमें किसी भी डाटे को डिजिटलाइज करना होता है, डाटे को डिजिटल फॉर्म में लाना होता है, ठीक है. तो ये स्कैनर भी करता है, ठीक है. चलिए देखते हैं स्कैनर कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है. तो जो स्कैनर की वर्किंग है 2-dimensional स्कैनर की, उसने शो की हुई है. दिस टाइप ऑफ स्कैनर आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्कैनर एंड आर जनरली यूज्ड टू इनपुट, वो इसने बात की है. सो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी पेपर जो है, ठीक है, वो हम इस पे पुट करते हैं, ठीक है. कोई भी पेपर होगा हम इसकी सरफेस पे रख देंगे स्कैनर की, ठीक है. और स्कैनर की ये जो इसका जो अपर पोर्शन होता है ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, ताकि लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे.
तो जब हम इसको इस पे रखते हैं, ठीक है, तो ए लाइट बीम जो होता है वो इसमें से गुजरता है, ठीक है, एल्यूमिनेट कर देते हैं इसको थ्रू जियोन लैंप। इसके अंदर एक लैंप लगा होता है जिसके थ्रू एक ब्राइटनेस इसके अंदर आ जाती है जैसे इसको हम क्लोज करते हैं, ठीक है। फिर एक हेड होता है, ठीक है, स्कैनर हेड होता है जो इसके अंदर मूव करता है और इसका एक इमेज डेवलप कर लेता है, ठीक है। वो अक्रॉस दी स्कैनर मूव करता है पूरे स्कैनर के ऊपर जो भी इसका सरफेस है, ठीक है। तो जब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, पेपर को स्कैनर पे रखा, फिर क्या हुआ, लाइट एल्यूमिनेट हुई, ठीक है, जियोन का लैंप ले लेते हैं, कोई भी लैंप होगा, ठीक है, जो ज्यादा नॉर्मली रोशनी पैदा करेगा। देन जो स्कैन हेड है वो इस पे मूव करेगा, ठीक है, और इसका इमेज डेवलप कर लेगा, ठीक है ना। फिर ये इमेज क्या होता है, जो सीसीडी, ठीक, सीसीडी टेक्नोलॉजी है, चार्ज कपल्ड डिवाइस, ठीक है, ये उसके थ्रू इसको किसकी फॉर्म में चेंज कर देता है, डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहां से ये इमेज डिजिटल फॉर्म में आ जाता है। ओके, वंस ये डिजिटल फॉर्म में आ गया, डिजिटल फॉर्म का क्या मतलब है, मींस कि ये जीरोस एंड वन की फॉर्म में आ गया, ठीक है, वट एवर इज रिटन और एनी ग्राफिक, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट के ऊपर था वो डॉक्यूमेंट अब इस फॉर्म में चेंज हो गया। सो जब इस फॉर्म में चेंज हो गया तो इट्स मीन कि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है, अब कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक। तो फिर ये क्या करेगा, इस इमेज को कंप्यूटर जो है रीड कर लेगा और अपने पास रख लेगा, सेम लाइक दैट जिस तरह इस बुक का इमेज इस वक्त कंप्यूटर ने अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको एडिटेबल बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, OCR सॉफ्टवेयर जो होता है, ऑप्टिकल करेक्चर रीडर, उसके थ्रू अगर हम इसको स्कैन कर दें देन क्या होगा कि ये हमारा एडिटेबल हो जाएगा। अभी तो ये एडिटेबल नहीं है, PDF फॉर्म में है, बट अगर हम इसको OCR के थ्रू स्कैन करके कर लें तो मैं इसको एडिट भी कर सकता हूं, मैं यहाँ स्पेलिंग चेंज भी कर सकता हूँ, नए वर्ड इंटर भी कर सकता हूँ, ठीक है, डिफरेंट वर्ड सेंटेंस लिख भी सकता हूँ, ठीक है, देन इट्स बिकम एडिटेबल। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द स्कैनिंग। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, स्कैनर क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके ऊपर एक पेज प्लेस करते हैं, ठीक है, देन उसमें एक लाइट एल्यूमिनेट होती है, ठीक, जियोन के लैंप के थ्रू भी हो सकती है। फिर स्कैनर हेड पूरे स्कैनर की स्क्रीन के ऊपर फिरता है, उस पेज का इमेज बना लेता है, ठीक है, उस इमेज को फिर क्या करता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हाँ, ये भी एक बीच में बात आपने याद रखनी है कि इमेज डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस विच इज देन स्कैन टू अ लेंस यूजिंग अ मिरर, ठीक है, डिफरेंट मिरर से होता हुआ, ठीक है, इसको लेंस के थ्रू इसका इमेज डेवलप किया जाता है, देन इसको भेज दिया जाता है CCD, ठीक है, चार्ज कपल डिवाइस के पास। चार्ज कपल डिवाइस क्या करती है, इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, एंड देन जब डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो OCR सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इसको एडिटेबल बना लेते हैं कंप्यूटर के अंदर, और हम डायरेक्ट इमेज भी रख सकते हैं इसका, ठीक है, कन्वर्ट करके, सिंपल। तो इट्स अप टू यू कि हमें खाली इमेज चाहिए या उसको हम एडिटेबल भी करना चाहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर इक्विप्ड विद ऑप्टिकल करेक्चर, ठीक है, रिकग्निशन सॉफ्टवेयर अलाउ द स्कैन टेक्स्ट टू फॉर्म अ डॉक्यूमेंट टू बी कन्वर्टेड इनटू टेक्स्ट फाइल। मैंने आपको बताया ना, फिर ये टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट हो जाता है, इमेज नहीं रहता। जैसे ये इस वक्त इमेज है, मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, बस मैं इसको रीड कर सकता हूँ, अप एंड डाउन कर सकता हूँ, इसमें चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक है। इफ आई वांट टू एडिट इट देन मुझे OCR सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको कन्वर्ट करना होगा टेक्स्ट फाइल के अंदर। व्हेन इट्स बिकम अ टेक्स्ट फाइल देन आई कैन मेक चेंजेस इन इट, ठीक है ना, तो फिर मैं इस पे चेंजेस कर सकता हूँ, राइट। यही बात वो बता रहा है, दिस मीन द स्कैन इमेजेस कैन नाउ बी एडिटेड एंड मैनिपुलेटेड, ठीक है। इफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाज फोटोग्राफ और एन इमेज देन स्कैन इमेज फॉर्म एन इमेज फाइल सच एज JPG। तो ये इसका इमेज फाइल भी बना सकता है, डिपेंड करता है आप अगर उसका जो नॉर्मली आप फाइल इंटर करते हैं,
ठीक है, वो जेपीजी बनाता है, जेपेग बनाता है, यानी कि जेपीजी जो है आपका इमेज के लिए एक्सटेंशन यूज होती है फाइल की। जो पेंट में आप काम करते हैं, देखिए जब पेंट में कोई वर्किंग करते हैं, ठीक है, ये देखें आप अगर पेंट ओपन करें, इसमें आप कोई भी चीज ड्रॉ करें, डिजाइन करें, ठीक है ना, अब आप देखें अगर मैं इस फाइल को सेव करूं, ठीक है, चलिए लेट्स से डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। इसको अब आप देखें मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है, पेंट में डेस्कटॉप के ऊपर। देन आप ये देखें, ये फाइल जो ओपन हुई है अभी आपकी, इसकी प्रॉपर्टीज में आप जाएं, ठीक है, अभी ये देखिए ये फाइल एक्सटेंशन दे रहा है पीएनजी, ठीक है, क्योंकि इसने ये माइक्रो फोटोशॉप जो बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है इसका वर्ल्ड का, उसमें डेवलप किया, ठीक है। अगर इसको मैं चेंज करता हूं, ठीक है, मैं इसको पेंट में कर देता हूं और अप्लाई कर दे इसको, अब देखिए ये पेंट में ओपन हुई है डायरेक्ट। अब इसकी एक्सटेंशन चेक करें, अच्छा देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन दे रहा है, पीएनजी ही दे रहा है अभी स्टिल, ठीक है, लेकिन ये आप इसको चेंज करके ऑप्शन दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जेपेग आ रही होती है, ठीक है, जो हम यूज कर रहे होते हैं। तो एनी हाउ फिर ये देखिए इमेज में बैरल, ये एक इमेज की फाइल है, ठीक है, इसको हम एडिट नहीं कर सकते। तो जो जेपेग होती है, अगर हम देखें फर्स्ट टाइम, अगर ये है कि अगर हम इसको सेव करना चाहें, फिर ओके सी हियर दिस वन इज दी जेपेग जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है। तो हम अगर इसमें सेव कर देते हैं तो देन ये इमेज की फाइल डेवलप हो चुकी है, ठीक है। अब ये एक टेक्स्ट फाइल नहीं है, दिस इज एन इमेज फाइल। तो अगर इसका मैं स्कैन करूंगा इस फाइल को या इस पेज, तो वो क्या स्कैनर क्या करता है, स्कैनर जो डेवलप करता है वो आपका जेपेग फाइल कर देगा। इफ यू वांट टू मेक इट इन टेक्स्ट फाइल जिसको हम ऐड कर सके, जैसे वर्ड की फाइल होती है, ठीक है, जिसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं, देन हम क्या करेंगे, इसको ओसीआर के थ्रू इसको रीड करेंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर के थ्रू, और वो फिर इसको कन्वर्ट कर देगा एडिटेबल फॉर्म में। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दिस इज स्कैनर, ठीक है, ये स्कैनर के बारे में थी सारी इंफॉर्मेशन। ओके, यहाँ देख भी लें, ठीक है, ये देखिए उसने आपको डायग्राम में मैंने आपके लिए की है, ठीक है ना। तो ये देखें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पर प्लेस किया जाता है, ये पूरा डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको प्लेस किया जाता है, ठीक है, फिर लाइट सोर्स के थ्रू इस पे लाइट दी जाती है, ठीक है, एल्यूमिनेट किया जाता है इसको, फिर डिफरेंट मिरर से मिरर के से होता हुआ, ठीक है, मल्टीपल मिरर्स लगे होते हैं, लेंस के पास जाता है, ठीक है, लेंस जो है एक इमेज क्रिएट करता है, देन इस इमेज को इसके CCG, ठीक है ना, कपल चार्ट डिवाइस के पास भेज दिया जाता है। देन कपल चार्ट डिवाइस क्या करती है, इस डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर देती है डिजिटल फॉर्म में, ठीक है, जीरोज एंड वन की फॉर्म में, ओके। देन इट इज अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर, फिर ये कंप्यूटर में अंडरस्टैंडेबल होती है, ठीक है, कंप्यूटर इसका आइदर इमेज बना लेकर, इमेज इसका सेव करके यहाँ रख लेता है अपने पास, या OCR के थ्रू इसको रीड करके, ठीक है। सर आप ये सारा कुछ रिकॉर्ड करते हैं, ये लेक्चर जो आज आप बता रहे हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं? जी जी रिकॉर्ड हो रहा है ये जी। तो अब आई थिंक आपको ये मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा कि स्कैनर, हाउ द स्कैनर वर्क्स, ठीक है।
सिंपल, फिर मैंने उसको आपको बार बार बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वी प्लेस अ डॉक्यूमेंट ऑन अ स्कैनर, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जो 7th 8th क्लासेस 6 क्लासेस में आप पढ़ते रहे ना इनपुट डिवाइसेस, वहां पर आप क्या करते हैं, आपने जस्ट वहां पे डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है। अब थोड़ा सा ओ लेवल्स में इसको अपग्रेड कर दिया। डेफिनेशन में सिंपल क्या था कि इनपुट आर दोज डिवाइसेस व्हिच प्रोवाइड द डाटा टू द कंप्यूटर, स्कैनर इज अ डिवाइस, ठीक है ना। ओके जी। सर मॉनिटर हो जाता है सर, वाजिब तमीन को पता चल जाता है सारा। जी जी मुझे पता है, बट ठीक है। तो मैं जो आपको बता रहा था कि जो जूनियर क्लासेस थी वहां पर आपने इनपुट डिवाइसेस को जस्ट रीड किया है एज अ डेफिनेशन। व्हाट इज अ स्कैनर? स्कैनर इज अ इनपुट डिवाइस व्हिच कन्वर्ट हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करता है इनटू सॉफ्ट कॉपी। तो यहां पर आप देख रहे हैं उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म, ठीक है। फर्दर डिटेल्स भी हैं, बट यहाँ पर आपने थोड़ा सा और अच्छी डिटेल, इससे ज्यादा की डिटेल्स जो हैं वो आपके कोर्स से बियॉन्ड है, इसलिए ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, इट्स अनफ, ठीक है। सो मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूँ। क्या करते हैं हम, डॉक्यूमेंट प्लेस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन अ स्कैनर सरफेस, ठीक है। उसकी ट्रे पे हम रखते हैं डॉक्यूमेंट को, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, जो लाइट सोर्स के थ्रू उस पे लाइट से एल्यूमिनेट करते हैं उसको, ठीक है। जब भी आप देखें कभी स्कैन करते हुए तो लाइट एल्यूमिनेट होती है, फिर वो डिफरेंट मिरर से होती हुई लेंस तक पहुंचती है, लेंस उसका इमेज डेवलप करता है एंड थ्रू सेंड इट टू द सीसीडी चिप, ठीक है। देन सीसीडी चिप क्या करती है, उसको डिजिटलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। आफ्टर कन्वर्टिंग इन डिजिटलाइज फॉर्म, ठीक है, तो कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट, तो कंप्यूटर फिर उसका या तो जेपीईजी इमेज बना लेता है, ठीक है, या फिर उसको टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर देता है थ्रू ओसीआर, ठीक है। ओके, दिस इज स्कैनर, काफी है ये, ठीक। ये सारा उसने यही लिखा है, इसको रीड कीजिएगा अपनी बुक में से। देन वी हैव अ 3 डायमेंशनल स्कैनर, ठीक है। 3 डायमेंशनल स्कैनर क्या करते हैं, ठीक है। 3 मैंने आपको बता दिया व्हाट इज 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल मीन के आप एक्स एंड वाई 2 डायमेंशनल है, जो आपको फ्रंट में, जैसे अगर बुक को आप फ्रंट से देख रहे हैं देन इट इज 2 डायमेंशनल, एक्स एंड वाई, ठीक है। ये 2 डायमेंशनल स्कैनर होते हैं सर, ये एयरपोर्ट में यूज होते हैं ना? सॉरी फिर बोलिएगा बच्चे। सर एयरपोर्ट्स में सर 2 डायमेंशनल स्कैनर, हाँ 2 डायमेंशनल स्कैनर यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। ये डिफरेंट प्लेसेस एयरपोर्ट्स पे यूज किए जाते हैं आपके, ठीक है। पासपोर्ट्स को रीड करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। पासपोर्ट्स पे जो डाटा होता है उसको रीड कर लिया जाता है, ठीक है ना, थ्रू दिस स्कैनर। So 3 dimensional scanner can scan solid object. Solid आपको पता है solid जो होते हैं वो 3 dimensional ही होते हैं, ठीक है। solid state जो होती हैं, okay, and produce a 3 dimensional image since solid object have x and y z। मैंने आपको बताया ना, जो 2 dimensional होगा उसकी 2 ही directions होंगी, vertical and horizontal, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, and y। और जो 3 डायमेंशन होगा उसमें फिर थर्ड वन भी होगी, दिस वन इज z, ठीक है, x y एंड z। तो फिर वो आपको कंप्लीट पिक्चर दिखाता है, ठीक है, फ्रंट बैक एंड लेफ्ट राइट। अ डिजिटल इमेज व्हिच रिप्रेजेंटेड द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। द स्कैन इमेजेस कैन बी यूज्ड इन कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, ठीक है। मैप वगैरह बिल्डिंग के जो आपकी आप देखते हैं ना, अक्सर एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है, जो हाउसिंग स्कीम्स होती हैं या कोई ऐसा प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट होता है, तो उसके ऊपर आप देखें वो दिखाते हैं, तो वो प्लाजा या जो आपको सोसाइटी का व्यू दिखा रहे होते हैं, दैट इज 3D, ठीक है। वो पूरे का पूरा आपको ऐसा लगता है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई हुई है, ठीक है, उसमें रूम्स विंडोज इस तरह की चीजें वो प्रॉपर दिखा रहे होते हैं, तो दैट इज 3D इमेज होता है, ठीक है, वो 3D इमेज होता है। तो यहाँ पे 3D स्कैन करके इमेज बनाएंगे आप, ओके। The technology used in 3D scanner laser, ठीक है, magnetic resonance, white light and so on. It is beyond the your चलें उसको वो डिटेल डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। Then we have a application of 2D scanner। हाँ ये देखें एयरपोर्ट की वो बात आ गई, ठीक है। एयरपोर्ट पे स्कैन करते हैं, ठीक है, 2D स्कैनर आर यूज्ड एंड एयरपोर्ट, ठीक है।
दे मेक अ यूज ऑफ OCR। OCR के थ्रू क्या करेंगे, जो आपका पासपोर्ट है जिसपे आपका नेम लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, सिटी लिखी हुई है, एड्रेस लिखा हुआ है, वो विच इज इन इमेज फॉर्म, तो वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा टेक्स्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है, ताकि आप उसको कहीं सेव कर सकें टेक्स्ट फाइल के अंदर। तो जो एयरपोर्ट पे लोग होते हैं वो उसको स्कैन कर लेते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी to produce the digital image which is represented the passport pages. Because of the OCR technology, the digital image can be manipulated in a number of ways. तो हम उसको manipulate कर देते हैं. For example, OCR software is able to view the image, select the text part of, then automatically put the text into the correct field of an existing database. तो जब वो उसको स्कैन कर लेते हैं पासपोर्ट को, तो फिर उसको अपने सॉफ्टवेयर में या अपनी फाइल में जहां जहां रखना होता है, नेम को जहां लिखना होता है, ठीक है, एड्रेस को जहां प्लेस करना होता है, तो वो सारी चीजें, क्योंकि फिर वो एडिटेबल हो जाता है, तो फिर वो उसको अकॉर्डिंगली अपने सॉफ्टवेयर में या अपने पास जो डेटाबेस है उसमें जहां जहां जो चीज सेव करनी होती है वो कर देते हैं। एज ए इमेज तो वो सारे का सारा उठा के ले जाएंगे ना, ठीक है। सो जब टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट हो जाता है, देन इट इज इजी कि आप उसका नेम कहीं भी उठा के ले जाएं, ठीक है, एड्रेस कहीं भी ले जाएं, डेट ऑफ बर्थ कहीं भी ले जाएं। At many airport, two-dimensional photograph is the passport is also scanned, ठीक है, and stored as a JPEG. ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। The passenger face is also photographed using a digital camera, ठीक है। 2D image is so it can be matched with the image of taken। अच्छा, तो फिर क्या करते हैं, एक इमेज कैमरे से ले रहे होते हैं पैसेंजर का, ठीक है, जो भी पैसेंजर होता है, और एक उसके पासपोर्ट के ऊपर जो इमेज होता है, ठीक है, एक इमेज उसका यहां पर पिक्चर जो बनी है पासपोर्ट के ऊपर, ठीक है, दिस वन। तो इसको ले लेता है, ठीक, ये आपको स्कैन कर लेंगे, वो इसको क्या किया है, स्कैन कर लिया। कभी आप एयरपोर्ट पे जो बच्चे गए हैं जिन्होंने ट्रैवल किया है नेशनल या इंटरनेशनल, ठीक है, तो ये स्कैनर के थ्रू स्कैन कर लिया, ठीक है ना, और ये जो है कैमरे के थ्रू पिक्चर ले ली। ओके, अब क्या करेगा कि वो ये दोनों चीजें उसके कंप्यूटर में आ जाएंगी, ठीक है, अब वो ये वाला इमेज और ये वाला इमेज आपस में क्या करेंगे, मैच करेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, मैच करेंगे जो कन्वर्ट किया है, ठीक है, मैचिंग करेंगे इन दोनों की और देखेंगे कि ये वही पर्सन है या नहीं है, ठीक है। अगर मैच कर जाएंगे देन इट्स मीन कि ये वही पर्सन है, क्योंकि सम टाइम पासपोर्ट पे 4 ईयर 5 ईयर पुरानी पिक्चर्स होती हैं, या सम टाइम लोगों ने क्या किया होता है कि पहले उनकी दाढ़ी वगैरह नहीं होती, ठीक है, या एज के साथ थोड़ा सा फेस चेंज आ जाता है, या कुछ वट एवर द रीजन इज, ठीक है, तो वो फिर सही तरह रिकॉग्नाइजेशन नहीं हो रही होती, तो वो फिर क्या करते हैं, फिर उसमें वो ये डिफरेंट पोजीशंस को देखें, जो इमेज होता है ये वाला आपका, ठीक है, जो कैमरे के थ्रू, डिजिटल कैमरे के थ्रू लिया जाता है, उसमें फिर बहुत सी पोजीशंस होती हैं, फिर वो देखते हैं कि आईज का गैप कितना है, ठीक है, इस तरह की चीजें देखते हैं, नोज का साइज क्या है, ठीक है, चिक्स का साइज क्या है, ठीक, लिप्स इनका साइज क्या है, तो इस तरह वो पूरा इमेज को रिकॉग्नाइज्ड कर लेते हैं, और फिर जो पासपोर्ट पे जो इमेज होता है उसको भी मैच कर लेते हैं। तो इट्स मीन कि अगर दोनों चीजें मैच हो जाएं, यानी ह्यूमन जो उस वक्त लाइव खड़ा है सामने और जो ह्यूमन की पिक्चर है दोनों से वो सेम हो जाए, देन इट्स मीन कि वो फिर ऑथेंटिकेटेड पैसेंजर है। ओके, दिस इज द वन वे। सर इसीलिए तो सर जब हम सर पासपोर्ट चेक कराते हो सर थोड़ा टाइम लगता है सर। जी बेटा, ओके जी, देखिए the face shows as a several position used by the face recognition software, ठीक है, जो मैंने आपको बताया उस पे डिफरेंट पोजीशंस है ना, ये ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे डॉट हैं, ठीक है, ये सारे, each position is checked when the software tries to compare the two facial images। two facial images कौन से, one is taken from the scanner जो आपके पासपोर्ट से लिया गया, and one is the from the digital camera। ओके, तो उसमें फिर वो क्या चेक कर रहा होता है, डिस्टेंस बिटवीन आईज, विड्थ ऑफ द नोज, शेप ऑफ द चिक्स, ठीक है, लेंथ ऑफ द जॉ, शेप ऑफ द आईब्रो, तो ये सारी चीजों को मैच करता है, तो फिर वो एक इमेज अपने पास बना लेता है, ठीक है। फिर उस इमेज को जो पासपोर्ट पे इमेज है
उससे मैच करता है, ठीक है। ये दोनों तो वैसे मेरे से तो सेम नहीं बने, ठीक। तो अगर वो सेम आ जाए तो देन इट्स मीन कि ये ऑथेंटिकेटेड है। ओके, देन एप्लीकेशन ऑफ 3D स्कैनर, ठीक है। अच्छा, ये याद रखना, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होते हैं वो कंप्यूटेड टोमोग्राफिक, ठीक है, सीटी स्कैनर, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। टोमोग्राफी जो है ये आपकी आजकल जो ये आप उसमें भी देखते हैं डिफरेंट जगहों पर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर टोमोग्राफिक स्कैनर्स आर यूज्ड टू क्रिएट 3-dimensional images of a solid object. This is based on the tomographic technology, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं एक इमेज को छोटे छोटे स्लाइस में कन्वर्ट कर देते हैं, which basically builds up an image of the solid object through a series of very thin slices. किसी एक बड़े इमेज को क्या करते हैं छोटे छोटे स्लाइस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसका इमेज लेते हैं, बाद में उन्हें रीयूनाइट करके प्रॉपर 3D शेप ले लेते हैं उसको, ठीक है, इस तरह। Together these 2D slice make up a representation of 3D solid object, ठीक है। तो इसका हर साइड से देखें जैसे आपका एक क्यूब है, अब ये देखें एक 3D शेप बन गई ना। अगर आप इसको जस्ट फ्रंट से देखें, एक साइड को पहले सिर्फ एक साइड को लोकेट करें, किसी भी एक साइड को, देन इट इज 2D, 2D, और ये सारी इस वक्त 3D शेप है। तो आप देखें वो क्या करेगा, हर साइड का 2D पहले ले लेगा, ठीक है, छोटे छोटे स्लाइस में कन्वर्ट करके। ठीक, हर साइड का वो 2D इमेज बना लेगा, क्या करेगा, सबको एज ए होल कंबाइन करेगा और कन्वर्ट कर देगा 3D में, राइट। ये बता रहे हैं टुगेदर 2D slices representation of 3D solid object. Each slice is built up by the X-rays, radio frequencies और gamma imaging जिनके थ्रू इमेजेस को जनरेट किया जाता है। The whole of the solid object is depending on how the image is formed, type of tomographic scanner can have different. सर ये थोड़ा सलमान साबिर की तरफ से शोर आ रहा है, तो आपकी आवाज कम आ रही है बहुत। तो मैं इसको म्यूट करता हूँ।